Good morning, students. Welcome to lesson number 30. And today we are going to study three different questions. First is about the variation of resistance with temperature in the case of conductors and semiconductors. The second point we are going to discuss is about the temperature coefficient of resistance and its importance. After that, we're going to solve a few numericals based on Ohm's law. So let us begin with the first question. This question comes as a 3-mark question, and this question is to state the variation of resistivity with temperature. In the case of the first one is conductors. Students, may I remind you that in the last video we have derived the expression for resistivity, and the formula for resistivity was m divided by ne square into relaxation time. You know pretty well that m is the mass of the electron, that's a constant. E is the electronic charge, that too is a constant. It tells us that the resistivity is inversely proportional to these two factors, namely the number density of the free electrons, and the second factor is relaxation time. Now, in the case of conductors, the value of n is very, very large. So that even if we increase the temperature, the value of n will increase very, very little. So we say that in the case of conductors, as temperature is going to increase, there will be an insignificant change in the value of n. So that we have to learn that in the case of conductors, with the increase in temperature, number density of free electrons are not going to change much. So the resistivity is inversely proportional to the relaxation time. Students, we have already studied कि what happens जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं. जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो कोलिशन हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो काफ़ी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, और जो एवरेज टाइम इंटरवल है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस वो कम हो जाता है. तो मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है, और रिलैक्सेशन टाइम के कम होने से रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है. एग्जाम में दे आस्क अस टू ड्रॉ ग्राफ्स showing कि किस तरीके से resistivity is going to change with temperature in the case of pure metal and in the case of alloys. Students, in the case of pure metal, say like copper, the variation is like this. And in the case of alloys like a nichrome, in that case the line is like this. So we are learning that in the case of good conductors, जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू इंक्रीज. दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन कि आर सफिक्स टी मतलब रेजिस्टेंस एट द हायर टेम्परेचर इज इक्वल टू आर नॉट रेजिस्टेंस एट द लोअर टेम्परेचर इनटू 1 प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ डेल्टा टी. So soon we are going to study alpha, don't worry about it. So that is called as temperature coefficient of resistance. Delta T represents the increase in the temperature. तो इस पार्ट ऑफ द आंसर में आपने ये लर्न किया कि कंडक्टर्स के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज कर जाता है. Now we begin with the second part in this. कि how will resistivity vary with temperature in the case of semiconductors. सबसे पहले तो हम याद कर लें कि सेमीकंडक्टर्स के दो एग्जाम्पल्स याद करें. एक है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम. अभी आपको बताया मैंने कि जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था टू दी नंबर डेंसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड व्हाट रिलैक्सेशन टाइम. तो इस सेमीकंडक्टर्स के केस में हम कहते हैं कि with the increase in the temperature,
there is an insignificant change in the relaxation time. तो रिलैक्सेशन टाइम बहुत कम चेंज होता है, इनसिग्निफिकेंट चेंज है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टिविटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द नंबर डेंसिटी ऑफ द चार्जेस. तो एज टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज, जो नंबर डेंसिटी है चार्जेस की वो बढ़ जाएगी, एंड देयरफॉर जो रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाएगी. Students, do not get confused with the term resistivity and conductivity. Conductivity इसका opposite है. तो हम ये कह सकते हैं कि conductivity increase करेगी. So we are learning कि with the increase in the temperature जो resistivity है वो exponentially decrease करती है with the rise in the temperature. तो ये दोनों इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे. और ये जो पर्टिकुलर बात है क्या कि टेम्परेचर के बढ़ाने से सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाती है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है. दैट्स व्हाट वी हैव टू लर्न. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टॉक अबाउट द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अभी थोड़ी देर पहले आपने इस इक्वेशन को देखा था. ये क्या था? रेजिस्टेंस एट हायर टेम्परेचर. ये क्या है? रेजिस्टेंस एट लोअर टेम्परेचर. इस अल्फा को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. और ये डेल्टा टी क्या है? ये है चेंज इन द टेम्परेचर. तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके और अल्फा की वैल्यू लिख सकते हैं. इट इज आर सफिक्स टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी. इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें. देखिए, आर टी माइनस आर नॉट का मीनिंग होगा चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई ओरिजिनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई चेंज इन टेम्परेचर. तो हम कहते हैं कि अल्फा इज डिफाइंड एज व्हाट? The change in the resistance per unit resistance per degree rise in temperature. So temperature coefficient of resistance is what? The change in the resistance per unit resistance per degree rise in temperature. देखिए, ऊपर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ भी रेजिस्टेंस है, तो कट जाएगा और इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस. Now having learned कि what is alpha, we are now going to understand कि अल्फा की इम्पॉर्टेंस क्या है. मीनिंग, अगर अल्फा स्मॉल है तो उसका क्या मीनिंग होगा, और अगर अल्फा लार्ज है तो फिर उसका क्या मीनिंग होगा. सपोजिंग अल्फा की वैल्यू स्मॉल है तो नेचुरली ये जो अगर ये स्मॉल है तो ये भी स्मॉल होगा. तो हम कहते हैं कि अगर अल्फा स्मॉल है तो विद द राइज इन द टेम्परेचर जो चेंज इन द रेजिस्टेंस है वो वेरी वेरी स्मॉल है. मतलब विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज मच. तो ऐसे 1 मार्क क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि जो एलॉयज हैं लाइक मैग्नीन वगैरह, why they are used for making standard resistors, why they are used for making potentiometer wires. The answer is कि इन वायर्स का, इन एलॉयज का अल्फा स्मॉल होता है. मीनिंग अल्फा स्मॉल होने की वजह से विद द राइज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज मच, एंड दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर्स. चलिए अब देखते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू लार्ज है तो फिर उसका क्या मीनिंग होगा. अगर अल्फा लार्ज है तो आर टी माइनस आर नॉट भी लार्ज होगा. इसका मतलब जरा सा टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो देर इज ए लार्ज स्केल चेंज इन द रेजिस्टेंस. सो अगर अल्फा लार्ज है तो इट विल मीन दैट विद ए वेरी स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस इज गोइंग टू चेंज एप्रिशिएबली. ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है इवन विद ए स्मॉल राइज इन टेम्परेचर, उसको हम यूज़ करते हैं डिजिटल थर्मोमीटर्स के अंदर.
तो ये जो मटेरियल है उसको सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इसको थर्मिस्टर कहते हैं। इसको हम यूज करते हैं टू मेजर द टेम्परेचर, so they're used as an element to measure the temperature, and these are known by the name called thermistors. Okay, let's start with the next question. He says, in this circuit, how should capital R be changed if the current in the circuit has to remain constant? तो यहाँ एक सेमीकंडक्टर दिखाया है जिसका रेजिस्टेंस R सफिक्स S है, और ये कहा है कि इस सर्किट में हमने करंट को कांस्टेंट रखना है। हम सेमीकंडक्टर को हीट कर रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं कि करंट इस सर्किट में विल बी बाय ओम्स लॉ वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस RS, दे आर इन सीरीज। फॉर द करंट टू रिमेन कांस्टेंट, जो ये रेजिस्टेंस है R प्लस RS, इसे भी कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर, जो रेजिस्टेंस RS है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जब ये रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फिर इस टर्म को कांस्टेंट रखने के लिए R की वैल्यू विल हैव टू बी इंक्रीज्ड। तो टेक्निकल पॉइंट स्टूडेंट्स इसमें यही है कि सेमीकंडक्टर को हीट करने से उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। Here we have another simple question. He says silicon and copper are cooled from 300K to 60K. How will their conductivity change? Student देखिए, he is talking about conductivity and not about resistivity. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है और कॉपर एक कंडक्टर है। इन द केस ऑफ ए सेमीकंडक्टर आपको याद दिला दूं, द ग्राफ was decreasing exponentially like this, और कंडक्टर के केस में it was increasing linearly like this. तो may I repeat the question? He says that सिलिकॉन को, जो कि सेमीकंडक्टर है, कूल किया जा रहा है फ्रॉम 300K to 60K। क्या मतलब? You are coming this way, and when you are coming this way, आप देख रहे हैं कि रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, as the temperature is what, decreased, तो resistivity is what, increasing, and जब resistivity increase करेगी तो conductivity will decrease. Same case in the case of conductor. आप temperature को decrease कर रहे हैं, temperature के decrease करने से resistivity को क्या हो रहा है, decrease हो रही है, और अगर resistivity decrease होगी तो फिर conductivity will what, increase. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इफ कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, देन विच ऑफ द टू टेम्परेचर्स विल बी ग्रेटर। तो जितने भी क्वेश्चन ग्राफ के होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो तरीका है सॉल्व करने का, यू नो वेरी वेल। क्या करते हैं, हम हमेशा स्लोप निकालते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा वो v डिवाइडेड बाई आई होगा, और v बाई आई का मतलब होता R अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और कंडक्टर्स के केस में आप जानते हैं हाउ इज द रेजिस्टेंस रिलेटेड विद टेम्परेचर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मे आई रीड इट अगेन, जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा उसी लाइन का उस केस में टेम्परेचर विल बी ग्रेटर। तो इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, दैट्स वाई T1 इज ग्रेटर। चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे I बाई V का ग्राफ बनाया है, तो हम कहते हैं स्लोप विल बी I अपॉन V, लेकिन आप जानते हैं I अपॉन V इज 1 अपॉन R। अब देखें, इसका मतलब जो स्लोप है वो इज इक्वल टू 1 अपॉन R है, तो स्लोप जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टेम्परेचर के, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
लेट मी रीड नाउ। ये जो लाइन बी है इसका स्लोप कम है। अगर लाइन बी का स्लोप कम होगा तो जो टेम्परेचर है उस केस में क्या होगा, हायर होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो दैट्स हाउ वी डू दिस। नाउ लेट अस बिगिन विद a few numericals today। इसमें ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इस सर्किट में दो रजिस्टर्स हैं 4 ओम के, ये 1 ओम है, 12 एंड 6, एंड देन दे आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 16 वोल्ट विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को आप यहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाएं, यहाँ दिखाएं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। ना इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू द 6 ओम रजिस्टर, ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स में आई टेल यू, क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले हमें किसी भी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो अब जैसे मान लिया मैंने इस पॉइंट को ए कह दिया, ये बी कह दिया, सी कह दिया और डी कह दिया। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल लूँ अक्रॉस ए एंड डी। तो व्हाट आई हैव डन इज आई मार्क द पॉइंट ए एंड डी, बीच में बी एंड सी हैं वो भी मार्क कर लिया। एज वी यूज टू डू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम रजिस्टर बाय रजिस्टर डायग्राम को रीड्रॉ करेंगे। अब जैसे आई आस्क, ये 4 ओम कहाँ कनेक्टेड है, अक्रॉस ए एंड बी। ये कहाँ कनेक्टेड है, ये भी अक्रॉस ए एंड बी। ये 1 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस बी सी, तो ये यहाँ बना दिया। और ये 12 ओम है बिटवीन सी एंड डी, और ये 6 ओम है अक्रॉस सी एंड डी। तो इस तरीके से इस सर्किट को हमने रीड्रॉ कर लिया ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि वो रजिस्टर्स कौन से हैं जो पैरेलल में हैं और वो कौन से हैं जो सीरीज़ में हैं। स्टूडेंट्स आप देखें, ये दोनों दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जब रजिस्टर्स की वैल्यू इक्वल होती है एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो उनका आंसर होता है इंडिविजुअल नंबर डिवाइडेड बाई 2। 4 डिवाइडेड बाई 2 विल बी 2। इसी तरीके से यहाँ देखें, एक 12 है और एक 6 है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेकिन रिलेशन क्या है, वन इज डबल ऑफ द अदर। तो हमने लर्न किया है लास्ट वीडियो में भी कि ग्रेटर नंबर ऑफ द 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 12 डिवाइडेड बाई 3 विल बिकम 4। तो अभी हम कुछ नहीं और कर रहे, हम सिर्फ रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा अक्रॉस ए बी 2 ओम है, ये 1 ओम है और यहाँ पे ये 4 ओम है। मे आई आस्क, ये तीनों रजिस्टर्स हाउ आर दे कनेक्टेड? You say they are connected in series, so they will get added 2 plus 1 plus 4, that makes it 7। मतलब अक्रॉस ए डी 7 ओम रजिस्टर हमको मिला, लेकिन अक्रॉस ए डी एक बैटरी भी लगी हुई है विद ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। नाउ आई आस्क कि इस सर्किट में टोटल वोल्टेज कितनी है? टोटल वोल्टेज 16 है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अगर करंट यहाँ से चले तो करंट कहीं पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो वो है 7 + 1 8। अब हम ओम्स लॉ लगा के करंट निकालेंगे गिवन बाय द बैटरी V by R, वोल्टेज 16 और टोटल रेजिस्टेंस 8, तो करंट हो गया 2 एम्पियर। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर रहे थे वैसे ही अब हमको एक स्टेप पीछे लेना है। यहाँ से देखिए, ये करंट 2 एम्पियर करंट यहाँ से आ रहा है, ये बैटरी ने 2 एम्पियर करंट दिया, पॉइंट ए पे आ गया 2 एम्पियर। यही 2 एम्पियर आप देखें आगे जाएगा और फिर आगे जाएगा, तो दैट्स हाउ वी हैव मार्क द करंट। इसमें वो प्रॉपर्टी लगाई है कि सीरीज सर्किट में करंट की वैल्यू विल बी सेम। अब हम और आगे चलते हैं। आप देखें कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो मे आई आस्क व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस ए बी?
by Ohm's law, voltage will be current multiplied by the resistance 4 volt. यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे वोल्टेज कितनी होगी, करंट मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस 2 वोल्ट, यहाँ हो गया. और यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस सी डी विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस की वैल्यू वाज 4 ओम, तो आंसर इज 8 वोल्ट. अब हमें स्टूडेंट्स ये पता चल गया कि अक्रॉस सी डी वोल्टेज कितनी है, 8 वोल्ट, और यहाँ रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम. तो क्या हम ओम्स लॉ लगा के करंट नहीं निकाल सकते? करंट की वैल्यू विल बी V बाई आर. वोल्टेज कितनी है, 8, और रेजिस्टेंस कितना है, 6. सो दैट विल गिव अस द करंट flowing through the 6 ohm resistor. Okay, in this question we are asked to find how much current will flow through the resistor X, through this 3 ohm resistor which we are calling as X. We will see the question. उससे पहले what we are learning is, किसी भी सर्किट में अगर कहीं पे कोई कैपेसिटर कनेक्टेड है तो वो कैपेसिटर डीसी करंट को फ्लो नहीं करने देता. आई एम रिपीटिंग अगेन. जैसे यहां पे एक कैपेसिटर शो किया हुआ है, तो कोई भी करंट इस कैपेसिटर के अंदर से फ्लो नहीं कर सकता. ऐसी ब्रांच जिसके अंदर कोई करंट ना फ्लो कर सके, दैट ब्रांच वी कॉल एज डेड ब्रांच, एंड वी नेवर कंसीडर द डेड ब्रांचेस ऑफ द सर्किट. तो इसमें मेन चीज हमने यही लर्न की है कि कैपेसिटर जिस भी ब्रांच में होगा वो ब्रांच डेड कहलाएगी, एंड नो करंट कैन फ्लो थ्रू दिस, एंड दैट ब्रांच हैज नॉट टू बी कंसीडर्ड एट ऑल. तो अब चलिए, यहाँ पे एक 15 वोल्ट सोर्स है, ये 3 ओम रजिस्टर है, ये भी 3 है, वो भी 3 है. हम सबसे पहले जंक्शन पॉइंट्स मार्क कर लें. अगर मैं इसको A एंड B कह दूं तो ये भी पॉइंट A है, ये पॉइंट अगर A है तो ये भी A होगा और ये पॉइंट भी B होगा. लेकिन ये पॉइंट B नहीं हो सकता क्योंकि वी आर नॉट अलाउड टू जंप ए रजिस्टर. हम इस पॉइंट को C कह देते हैं. तो मीनिंग ये हुआ कि हमने A और B पॉइंट्स को दूर दूर ड्रॉ कर लिया पहले, तो उसके बाद जितने इंटरमीडिएटरी पॉइंट्स हैं उनको ड्रॉ किया. तो यहाँ मैंने C ड्रॉ किया. अब हमने इस सर्किट को इस शेप में लाना है. हमने रजिस्टर बाय रजिस्टर रीड करना है. फॉर एग्जाम्पल, ये रजिस्टर कहाँ कनेक्टेड है, ये है बिटवीन A एंड C. तो ये 3 ओम का रजिस्टर ये दिखा दिया. यहाँ पे एक ब्रांच है जिसमें एक ये 3 है, एक ये भी 3 है. तो ये ब्रांच इज कनेक्टेड अक्रॉस AC, और ये वाला रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस B एंड C. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि इस सर्किट को हमने इस शेप में कैसे ट्रांसलेट किया है. स्टूडेंट्स, एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, हम पहले सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है. सो बिटवीन A एंड C हम देख रहे हैं कि ये 2 रजिस्टर्स सीरीज में लगे हैं, इसलिए इनका आंसर विल बी 6. और ये 3 है, और यहाँ भी ये 3 है. अब ये 6 और ये 3 दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, लेकिन इनके बीच में रिलेशन क्या है, वन इज डबल ऑफ द अदर, इसलिए द आंसर विल बी ग्रेटर नंबर ऑफ द 2 डिवाइडेड बाई 3. तो 6 डिवाइडेड बाई 3 विल बिकम 2. मतलब रेजिस्टेंस अक्रॉस AC आ गया 2 ओम, और ये पहले से 3 ओम था. अब बिटवीन A एंड B ये 2 रजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में हैं, इसलिए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 5 ओम आएगा. और जो टोटल वोल्टेज अक्रॉस AB थी वो कितनी थी, 15 वोल्ट. तो यहाँ तक हमने इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया. अब हम एज यूजुअल
हम करंट निकालेंगे, टोटल करंट, बाय यूजिंग ओम्स लॉ कि करंट विल बी वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज 15 है, रेजिस्टेंस 5 है, तो करंट की वैल्यू हो गई 3 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स हमने एक स्टेप पीछे जाना है। हम कहते हैं कि ये जो बैटरी है 15 वोल्ट की, इट इज गिविंग आउट ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर यहां भी फ्लो करेगा, 3 एम्पियर वहां भी फ्लो करेगा। अगर एक करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो करता है थ्रू 2 ओम रजिस्टर, तो कैन यू टेल मी कि व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस एसी? Well, by Ohm's law, voltage will be current multiplied by the resistance. इसका मतलब voltage across AC is 6 volt. Now, voltage across AC is 6 volt. और यहां resistance कितना है? 6. Can you tell me कि यहां current कितना होगा? I will be equal to V divided by R. तो यहां पे इस ब्रांच में, ये ऊपर वाली ब्रांच में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। तो यहां भी करंट कितना है? 1 एम्पियर। और यहां भी करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग थ्रू द 3 ohm resistor which we marked X. So the current through X is 1 ampere. In this question, he is asked what will be the voltmeter reading. एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 12,000 ओम है। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी 12,000 ओम है। एट 1/4 द डिस्टेंस, 1/4 का मतलब 1/4 ऑफ द टोटल, 3,000 ओम इस पार्ट ऑफ द सर्किट का रेजिस्टेंस है। ही सेज इसके क्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया है जिसका रेजिस्टेंस 6,000 ओम है। तो यहां पे 3,000 ओम है, वहां पे 6,000 ओम है। तो हाउ आर दे कनेक्टेड? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आप देखें, वन इज डबल ऑफ द अदर, इसलिए आंसर विल बी ग्रेटर नंबर डिवाइडेड बाई 3। मतलब 6,000 डिवाइडेड बाई 3 विल बिकम 2,000. So the resistance between A and C will be 2,000 ohm. अब let us find out कि total current कितना होगा. Total current will be the total voltage divided by the total resistance. पहला रेजिस्टेंस कौन सा है? BC. 1/4 तो था बिटवीन A एंड C, तो 3/4 यहां बच गया। आप ऐसे समझ लें कि यहां पे 3,000 है और टोटल 12,000 था, तो 9,000 बचा। मतलब BC के बीच में एक रेजिस्टेंस है कितने का? 9,000 का। और AC के बीच में रेजिस्टेंस कितना है? 3,000 नहीं है, कितना है? 2,000. सो इस तरीके से वी कैन फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। अब हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस AC. बाय ओम्स लॉ वोल्टेज विल बी करंट मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस अक्रॉस AC. तो करंट की वैल्यू यहां से हम लिख देंगे, मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस अक्रॉस AC. उसका जो रेजिस्टेंस अक्रॉस AC है वो 2,000 है, वो यहां लिख दिया, मल्टीप्लाई करके we get the answer. So these were some simple questions based on Ohm's law that are normally asked in the exam. Thank you.